یہ لے دو نا. ہاں ہلو. ہاں جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. کیا حالات چل رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. سب ٹھیک ہے؟ آپ پہچانا؟ ہاں سیکھر سے. ہاں سیکھر سے بول رہا ہوں. اللہ مدد فرمائے. اچھی بات. اب پہچان تو لیا آپ نے. یار دوست تو ہے آپ کی. ایک بات ہے. اللہ کرم. ہاں یہی بات. رب جتنی علم. اللہ کرم فرمائے انشاءاللہ. یہی ہے. اور سناؤ طبیعت وغیرہ کیسی ہے؟ اللہ کرم سب ٹھیک ہے. بس اللہ کا کرم ہی چاہیے رب العالمین. میں بولا کئی دن ہو گئے مولانا صاحب سے بات کی ہے. جی کا پوچھتے ہیں حال چال. ٹھیک ہے طبیعت وغیرہ؟ چلو بہت اچھی بات ہے. اللہ مدد فرمائے. روز سنتے ہیں آپ کا ویڈیو وغیرہ. اچھا. ہاں سنتے رہتے ہیں. چلو اچھی بات. کسی کی اصلاح کرنا اچھی بات ہے. بس یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرو پہلے. اور وہ 150 سال پہلے کی کتابیں پڑھو. یہ آج کے زمانے کی پڑھو. یہ سب نے اپنے اپنے حساب سے لکھ دیے بس. ہاں صحیح ہے. 150 سال پیچھے جاؤ بس. بالکل. سب اپنے اپنے حساب سے لکھ کے پڑھائیں. اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, سب نے اپنا مقصد غصہ رکھا. صحیح ہے. 150 سال پہلے جاؤ. بھائی صحیح بات. اگر جو بتایا اللہ اللہ کے رسول کی, وہ کہاں بتا رہے ہیں. آج کل تو مقصد کے حساب سے چل رہے ہیں نا. کسوٹی ہوتی ہے نا انسان کے پاس. کسوٹی بغیر تو کیسے ہے کہ صحیح بول رہا غلط بول رہا. اللہ تعالیٰ نے اصول قرآن اور حدیث ہمیں کسوٹی دی نا, دنیا کو کسوٹی پر رکھنے کے لیے. ہاں وہ تو دیکھ لو, سمجھ لو پورا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. صحیح بات ہے. ہاں کسوٹی ہے نا ہمارے پاس میں. ایسے تھوڑی کوئی آنکھ میں دھول جھونک دے گا ہمارے. صحیح بات. ہاں کسوٹی ہے ہمارے پاس میں. جیسے سونار کے پاس میں کسوٹی ہوتی ہے نا, سونار کو سونے کو چیک کرنے کی. صحیح ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا کلام اور پیارے نبی کی حدیث, لیکن اس کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. تو وہ کسوٹی ہے. پڑھنا چاہیے, تفصیل پڑھو. مثال یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بیٹی عمل کرنا. ہاں اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میری طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے چھڑا سکوں گا. وہ تو ڈرایا تھا, اللہ نے حکم فرمایا تھا, اس لیے ڈرایا نا. تو وہ اللہ کا حکم تھا, اس لیے آپ نے فرمایا تھا. پروین قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے. کئی دفعات مدارہ کو ڈرایا. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ حضور بخشی نہیں کروائیں گے, شفاعت نہیں کروائیں گے. حضور نے بس ڈرایا. لیکن عمل ضروری ہے. فاطمہ زہرا کو ڈرایا کہ فاطمہ عمل کرو, عمل کرو. اور حسن حسین کو بلا کر ڈرایا, امام حسن کو بلا کر ڈرایا, امام حسین علیہ السلام کو بلا کے بھی ڈرایا. ایک چھوٹی موٹی غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا رب العالمین, لیکن بغیر شکیرہ گناہ تھوڑی معاف کر دے گا. ڈرایا امام حسن حسین کو بھی, لیکن یہ بھی فرمایا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے نازل فرمائی تھی کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے, وانذر عشیرتک الاقربین. تو پھر ڈرانا ضروری تھا نا. اللہ نے جو حکم فرمایا تو امت کے لیے عبرت ہوئی نا. خاص طور سے گھر والوں کے لیے حکم آیا تھا اللہ کی طرف سے کہ اپنے گھر والوں کو ڈرایا. ڈرنا چاہیے نا اس چیز سے. تو امام حسن حسین کو ڈرایا, حضرت فاطمہ کو ڈرایا, اور مجھے ابھی دھیان نہیں آ رہا, پڑھنا پڑے گا. اور امام حسن حسین کو بھی ڈرایا تھا. الحسن والحسین. یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا. بالکل صحیح ہے. لیکن عظمت رسول وہ اپنی جگہ ہے. حضور شفاعت بھی فرمائیں گے, لیکن پہلے نمبر پہ مومنوں کی شفاعت ہوگی جو نمازیں پڑھتے ہیں 5 ٹائم, حلال روزی کھاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, جو فرما بردار ہے. پہلے نمبر ان کا آئے گا. ہاں جی, پہلا نمبر شفاعت کا ان کا آئے گا جو نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, روزے دار ہیں, زکوٰۃ ہے, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ہاں پہلا نمبر ان کا آئے گا شفاعت. اب یہ جمعہ پڑھنے والے ہیں, ان کی کیا شفاعت ہوگی, کیسے شفاعت ہوگی جمعہ پڑھنے والوں کی, یا ایک دم جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی. سمجھ گئے ہیں. بالکل. اللہ بس مدد فرمائے. اس زمانے میں حالات بہت خراب ہیں. بس نمازی بناؤ لوگوں کو, اور حلال روزی کا پابند بناؤ.
नमाजी बनाओ हलाल रोजी का पास जानते नहीं है हलाल रोजी। हलाल रोजी तो इल्ला माशाल्लाह कोई रुपए में 2% लोग जानते होंगे हलाल रोजी किसको कहते हैं। फिर भी कोशिश करें जितनी हो सके खा लें। अभी कुछ वक्त के पहले की बात है कि हमारे यहाँ मैं एक शादी में गया, हाँ तो वहाँ वो बस पूरी तबलीग जमात से भरी हुई थी। अच्छा हाँ हाँ क्योंकि वो जिस लड़के की शादी थी, जिसके लड़के की शादी थी वो तबलीग जमात से जुड़ा हुआ था। हाँ हाँ सुनना बात आप। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ तो मैं भी उसी बस में बैठा हुआ था, वो मेरा चाचा लगता है रिश्तेदारी में। अच्छा अच्छा हाँ समझ रही बात को। तो मैंने वो तबलीग जमात के साथ मेरा कोई ताल्लुक मैं वो नहीं है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात हो रही है। हाँ तो वो क्या हुआ, एक जगह बस रुकी, हाँ जैसे रेलवे फाटक होता है ना, बस रुकी हाँ एक जगह रेलवे फाटक के ऊपर बस रुकी। हाँ तो बस रुकी तो वहाँ पर कोई एक शख्स मरा हुआ था। मरा हुआ? हाँ हिंदू का इंतकाल हो गया था। हाँ 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 तो उसके घर वाले कोई रास्ते में जाने वाले को वो जो शरबत वगैरह पिलाते हैं ना, हाँ उसकी तरफ से वो पिला रहे थे। हाँ तो मैंने उनको कहा कि भाई ये गेरुल्ला के नाम का खाना है, इसको नहीं पीने का। ये गेरुल्ला के नाम का है, ये अपने बुजुर्गों के नाम से जिस आदमी का इंतकाल हो गया उसकी तरफ से ये सदका कर रहे हैं, जैसे अपन मुसलमान सदका करते हैं वैसे। हाँ हाँ फिर ये अपने लिए हराम है। फिर क्या हुआ? ये अपने लिए हराम है। नहीं वो उन्होंने खाया कि नहीं खाया तबलीग जमात वालों ने? वो लोगों ने 5-5 गिलास पिए। अच्छा तबलीग जमात वालों ने हाँ एक नहीं 5-5 गिलास पिए, क्योंकि दूध का शरबत का बना हुआ था वो। अच्छा खा गए, सब खा गए, इनके फिर सब जायज। मेरे पास में बोला कि फोन कर रहे हैं वो लोग। अरे इन लोगों का कोई सच, इन लोगों में सही लोग कम है। वो लोग के साहब हमने ये शरबत पी लिया, हलाल है या हराम है? देखो तुम्हारे को पहले पूछना चाहिए ये बात। अच्छा पहले पूछना चाहिए। वो तो क्या उनका ये चीज हराम बहुत है। से लोगों के ईमान हलक तक है, हलक तक ही है, फलक तक नहीं। हलाल किसको कहते हैं, हराम किसको कहते हैं? वो तो बातें रह गई, सब जगह बातें ही रह गई हैं। अब आमतौर से ईमान हलक तक रह गए हैं। बैंक के भरी पड़ी है इनकी भी, जमात वालों की। तो कहते हैं कि अल्लाह पे भरोसा करो, खुद बैंक के भरते हैं। दूसरों से कहते हैं अल्लाह पे भरोसा करो, दूसरों से कहेंगे अल्लाह पे भरोसा करो, खुद बैंक के भरेंगे। अरबों रुपये बैंक के भरते हैं लोग, जमात वाले अरबों रुपये उनके पास। हाँ जी अभी आप भरूच में जाओ, गुजरात में एक भरूच जिले से, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, एक ही जिला भरूच से जमात वालों के पैसे से, सुन्नियों के पैसे सिर्फ जमात वालों के पैसे से कम से कम 5,000 लड़के पढ़ सकते हैं। इतना बड़ा गांव बना दूंगा, 5,000। और उसमें कॉलेज भी बना दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा, तनख्वाह का भी 5 साल का रख लूंगा बैलेंस। अगर सिर्फ 5% वो मुझे दे दें ईमानदारी से भरूच के जमाती लोग, तो 5% में चैलेंज से 5,000 दालू के बच्चे रखूंगा। उसी में डॉक्टरी, इंजीनियरी भी और भी डिपार्टमेंट हो जाएंगे। उसी में 5 साल की तनख्वाह भी रख लूंगा ये चैलेंज के साथ। एक जिला से गुजरात, पूरी गुजरात ही नहीं, जिला भरूच के सिर्फ जमातियों का 5% पैसा देने मुझे चैलेंज से बनवाऊंगा। 5,000 बच्चों का दाल लूं और उसी में टेक्नोलॉजी वगैरह कारखाने भी बनवा दूंगा, उसी में खाने पीने का सामान भी आ जाएगा। और 5 साल का बजट भी आलिमों की, कम से कम 50 आलिम पढ़ाएंगे तो उनकी भी तनख्वाह रख लूंगा 5 साल तक की। एक जिले की बात बता रहा हूँ, भरूच में इतना पैसा जमातियों का। मैं देख के आऊँ ना, करमाड़ भरूच में मनोबर है, अगर 1 अरब वाला है तो 5 करोड़ देगा तो कितना हुआ। और एक एक गांव में कम से कम 50-50 अरबपति है, 100 10-10 अरबपति, तो कितना हो जाएगा। अब जिसके पास 1 अरब है तो 1 अरब ही थोड़ी होगा, कोई के पास 10 अरब होगा, कोई के पास 5 अरब होगा। ये 1-2 गांव की बता रहा हूँ, करमाड़, मनोबर और थाम, ये कंठारिया, कम से कम 100 गांव ऐसे हैं भरूच जिले में जिनके अरबों खरबों रुपया है। तो अगर 5% में मंगवाऊंगा ना तो कितना हो जाएगा मालूम है? वो तो खरबों का हिसाब बनेगा, खरबों का। हाँ वो तो ये लोग जबान से कहते हैं जमात वाले भी कि अल्लाह पे भरोसा करो, लेकिन भरोसा करो ना। हम तो कह रहे हैं 5% भरोसा कर लो, तो मेरे दे दो 5%। में अपने लिए नहीं ले रहा, कमेटी तुम बना लो।
कमेटी बनाकर तुम मेरे सामने दो 5%, मेरे नहीं मत दो, सिर्फ 5% भरोसा कर लो अल्लाह पर बस। हाँ जी भाई साहब, हेलो मौलाना साहब, हाँ इन लोगों को गोश्त रोटी पर भरोसा है। देखो गोश्त रोटी पे भरोसा है। बता रहा हूँ मैं आपको, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, ये आते हैं तो ये मसले जानते हैं ये लोग, ये अल्लाह की तौहीद क्यों नहीं जानते कि अल्लाह की पावर क्या होती है। हाँ तौहीद, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल तौहीद के मामले में इला इल्लल्लाह जो हमने कलमा पढ़ा, इसका मायना और मतलब ही नहीं बताते हैं लोगों को। ये तो कहते हैं बाल पकड़ के आ जाऊँ मस्जिद में, ये तो 4 नंबर सुनो, ये बातें हैं इनके पास में। जब जामिया मिल्लिया में मुसलमानों पे आफत आई, बेचारे गरीब मुसलमानों पर, पढ़ने वालों पर, तो 1% भी मदद नहीं की जमात वालों ने, जबकि दिल्ली पूरा भरा पड़ा जमात में। जरा भी हमदर्दी को नहीं आगे, चलो भाई हम इनके साथ में, अगर आ जाते ना वो जमाती, तो हिम्मत नहीं थी कि इतना जो जुल्म हो रहा था हो जाता जामिया मिल्लिया। अगर आ जाते हमदर्दी के तौर पे लाखों लोग आ जाते, कितनी बड़ी शाहीन बाग में भी नहीं आए, ये कहीं नहीं जाते, ये ऐसे दुनियावी काम बताते हैं कि क्या कहेंगे दुनियावी मामला है, यानी गैर आगे तुम्हारे घर में बेइज्जती कर जाए, तुम्हारी लड़कियों की बेइज्जती कर जाए, फिर तुमका वो दुनियावी मामला है। तो खाली ईमान हलक तक है कि अल्लाह की रात पे यकीन रखो, यकीन रखो। 5% हम कह रहे हैं भरूच के एक गांव से दिला दो, एक गांव से मुझे दिला दो, मैं तुम्हें चैलेंज से न बनाऊं तो मेरे जूतों का हार डालना, इतना बड़ा चैलेंज दे रहा हूँ। भरूच के जमाती मेरे जूतों का हार डाल के निकाले गधे पे बिठा के, अगर न बनवाऊं तो 5000 बच्चों का दालूम के बराबर दालूम न बना दूं तो देंगे नहीं, 5% भी नहीं देंगे। मौलाना साहब कह देंगे जा अपना काम कर, हम कहेंगे यार तुम तो अल्लाह की रात से यकीन बनाते हो कि अल्लाह पे भरोसा करो, हम तो 5% भरोसे की बात कर रहे हैं, तुम 10 की बात करेंगे तो तुम तो क्या हार्ट अटैक में जाओ, 50 की कर दी तो तुम आईसीयू में भर्ती जाओ। कौन दावत दे रहा हमारी? अरे भरोसे तो वो थे जिनके बारे में शायर ने कहा है, दश्त दश्ते दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो थे भरोसे वाले जिन्होंने, ये लोग जब आते हैं जमात के अंदर तो ये किसी दावत देता है ना इन लोगों को दावत। हाँ हाँ, उन लोगों को ये भी नहीं पूछते कि भाई तू कमाता क्या है, तू करता क्या है। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, बात यही है। हाँ, एक तू सूद का कारोबार करता है, एक तू हलाल कमाता है, एक हलाल खाता है, एक नहीं खाता है, कोई पता नहीं इनको। हाँ, इनकी तो दावत आ गई, बस दावत आ गई बोला। मेवात जाएंगे तो दावत चटखाल में जाते हैं, और उनके अमीर पर दारुल देवबंद के लोगों ने फतवा लगा दिया, मौलवी साहब पर दारुल देवबंद ने फतवा लगा दिया, बहुत गुमराहियत बकी, जाने क्या क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी छींटा कसी की, और भी जाने क्या फतवा लगा दिया दारुल देवबंद ने। और इस पर कुतुब गुजरात यूसुफ साहब वापी वाले, जो यूसुफ कासिम साहब है, बहुत नाराज है देवबंद वाले आलिमों कि तुमने फतवा वापस क्यों लिया, उसकी इज्जत क्यों की और रुजू क्यों किया इस तरह से, बगैर जब कलमा पढ़े। इसमें तौबा से काम नहीं चलेगा, जो से कहा कलमा पढ़ना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कौल का है कुफरिया, उस हिसाब से कलमा भी पढ़ना पड़ता है, तौबा निकाह भी करना, ऐसे तौबा से नहीं चलता काम उसमें। क्योंकि हुजूर ने जो फरमाया वो ये फरमाया, ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला गुनाह से ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। लेकिन हदीस में ये थोड़ी है कि ताइबु मिनल कुफ्र कमल्ला कुफ्रला, तौबा करने वाला कुफ्र से ऐसा हो जाता है जैसे उसने कुफ्र ही नहीं किया, गुनाह का लफ्ज है। यानी कुफ्र से अगर दर्जे हल्का गुनाह किया है तो वो तौबा से माफ हो जाएगा। अब जैसे अमीनुल कादी मालेगांव वाला, इसने कहा कि चांद आके पीराने पीर से पूछता था कि मैं 29 को निकलूं कि 30 को निकलूं, ये सरासर कुफ्र है सभी। इस पर तो उसे कलमा पढ़ना पड़ेगा, बीवी से निकाह करना पड़ेगा, और जब तक निकाह नहीं किया वो सब गुनाह की तौबा करना पड़ेगी जब तक वो अमल ठहरा। मान लो 50 दिन तक बीवी से अमल ठहरा दिया इसने, तो फिर बाद में लोगों ने कहा कि अब कलमा पढ़ो, तुमने क्या कुफ्र बका अल्लाह की शान के खिलाफ के। पीराने पीर से आकर चांद पूछता था, जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया अशम्स वल कमर व हिस्बान, सूरह रहमान में, सूरज और चांद हिसाब से चलना है अल्लाह के हुक्म से, कुरान में है, बिल्कुल कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया या माशर जिन्न वल इंस, ए जिन्नात और इंसानों इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू, तो सूरज चांद सब अल्लाह के हुक्म से चलना है, बिल्कुल। और अमीरुल कादरी ने और भी कितने कुफ्र बके, एक कुफ्र नहीं बका। देखिए बाकरगंज वाला बाकरगंजी जो फाजिल बरेली के खानदान का है, ये तो इसका तो दिल काला हो चुका है, ये तो उसे बुला रहा है जिस पर कुफ्र के फतवे लगे उन सबको बुला रहा हो, यानी कुफ्र के फतवे लगे हो या कुछ भी गुमराहियत के, उनको बुला के दावत दे रहा जानबूझ के कि उसे अपने सगे भतीजे को जलाना है कि देख जिन जिन में तुम फतवे लगाओगे इन्हें मैं बुलाऊंगा। उसका ईमान है कहाँ?
वो बाकरगंज में जो बुलाता है जलसे में अमीनुल कादी को, और वो एक कचोटे शरीफ से आए थे, कोई वोट बटोरने आए थे, वोट बैंक करने के, मौला ये कम जनाजा निकाल देंगे। अरे तेरा ही जनाजा निकलेगा कुछ दिन में, देखना। हजरत अली, अरे वो जने का पगड़ी कहने के असर पे बांध के आ गया था, वो वोट बैंक करने आते हैं ऐसे जुमले बोल के कि लोग हमसे बरेली वाले खुश हो जाएं, ऐसा बोल देंगे। अरे बस कुछ दिन के लिए खुशी है। इसके बाप ने तो सजदे कराए हैं, पब्लिक से सजदे कराए, वो वीडियो डली, फिर इसके बाद में जैसे ही बोला उसके बाद वीडियो डली, देखिए इसका बाप वो है, ये जिसने बोला था, और उसमें मौलाई के जनाजे निकाल देंगे, ये देखो इसका बाप सजदे कराता है लोगों से, सबके सामने सजदे करा रहा, मना थोड़ी कर रहा है। एक ने थोड़ी सजदा किया, नहीं कईयों ने सजदा किया, औरतों ने सजदा किया, वो खड़ा हुआ है कम बखत कहीं का मलाउन किस्म का आदमी है। यही नहीं कह रहा कि भाई सजदा मत करो मुझे, है? बताइए आप। ये क्या जानते अल्लाह की पावर, क्या जानते अल्लाह क्या होता है? अरे वो हम्माद रजा मुरादाबादी कह रहा है कि फरिश्ता लंगड़ा से, फरिश्ता लंगड़ा था, वो हम्माद रजा ने फरिश्ते को लंगड़ा बता दिया और ये कहा तमाम सैयद कयामत में हालात को ढूंढेंगे। हम्माद रजा कह रहा है कि जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले फेंक दो, वो कचौड़ी पकौड़ी खा लो गैर मुस्लिमों की, यानी मुश्रिकों की बनी हुई कचौड़ी खाओ, पकौड़ी खाओ, ये खुद खाता है, सब खाएगा। अरे मिठाई की दुकानें अक्सर उन्हीं की हैं, खाते ही सब खाते मुल्ले मौलवी। वो काबे के इमाम को नापाक बताते हैं और कचौड़ी पकौड़ी को जायज बताते हैं। मुश्रिकों की कचौड़ी पकौड़ी जायज है, जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुश्रिकून नजस, बेशक मुश्रिक नजस है, कुरान में अल्लाह फरमाता है। तो उनकी जो कचौड़ी पकौड़ी जायज है हम्माद रजा को और अमीनुल कादी को। और काबे के इमाम नापाक, काबे के इमाम मुसलमान नहीं है इनके नजदीक, ये अमीनुल कादी के नजदीक, हम्माद रजा के नजदीक, शहजाद आलम के नजदीक, और जमदा शाही के मुफ्ती के नजदीक, और ये क्या कहते हैं ये फजलुल्लाह चिश्ती के नजदीक भी काबे का इमाम मुसलमान नहीं होगा। मदीना शरीफ का इमाम भी, वहाँ के सैयद भी मुसलमान नहीं है इन लोगों के नजदीक। वहाँ के सहाबा किराम की औलाद है वो भी मुसलमान नहीं है, उनका निकाह भी नहीं हो रहा, बगैर निकाह के रहते हैं वहाँ पर। इनका अकीदा है कि अगर वहाबी निकाह पढ़ा है तो निकाह नहीं होगा, और अगर वहाबी ने निकाह पढ़ा दिया हो तो जाएगा। फाजिल बरेलवी ने लिखा है, लेकिन पढ़वाने के, लेकिन गवाह में तो मुसलमान होने शर्त है। गवाह अगर वहाबी बनेगा तो निकाह ही नहीं होगा, वहाँ तो सब वही निकाह वही गवाह बन रहे हैं। मक्का शरीफ मदीने में वो कौन गवाह बनता है? क्या कोई हशमती बनने जाता है, कोई रजवी बनने जाता है, कोई मिसबाही बनने जाता है मुबारकपुर शरिया से, या मोहम्मद अहमद मिसबाही जाता है गवाह बनने के लिए? देख लो आज मोहम्मद अहमद का चेहरा देख लो आप, इससे पहले यासीन अख्तर साहब का चेहरा देख लो, कैसे चेहरे हो रहे थे। ये जितने फाजिल बरेलवी के गुण गा रहे हैं इनके चेहरे देख लो बाद में कैसे हो जाते हैं। अल्लाह रसूल के गुण गाओ तो अल्लाह ताला चेहरे पे नूर अता फरमाएगा। बिल्कुल आएगा। सहाबा किराम के गुण गाओ, अहले बैत के गुण गाओ, है। अगर ख्वाजा कईन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की तबलीग की, आज दुनिया उनको याद रखती है। उन्होंने कोई अपने फिरके की तबलीग नहीं की, इस्लाम की तबलीग की, लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। क्या ख्याल है? अब वहाँ के मुजाविर कुछ भी करें तो उससे उसके जिम्मेदार ख्वाजा कईन अजमेरी थोड़ी। तो मुजाविरों की कमी है, कुछ कमी है वो जाने मुजाविरों, अब उसके जिम्मेदार हजरत ख्वाजा कईन नहीं है। क्या ख्याल है? उनकी तरफ बहुत सी बातें, बहुत सी झूठ मंसूब कर दे, कोई कुछ मंसूब कर दे तो उसके जिम्मेदार वो नहीं। उस जमाने क्या किताबें लिखने का जोर नहीं था। अब कोई कहे कि कलमा ऐसे पढ़वाया वैसे पढ़वाया, तो अरे तो भाई उनके जमाने में किताबें ही नहीं लिखी गई थी। अब कोई कुछ भी बना के उनकी तरफ मंसूब कर दे कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़वाया। अरे कहाँ पढ़वाया? तूने देखा था? हदीसों में ज़ईफ का लिखा है कि ये हदीस ज़ईफ है, मौजू है रिवायत के एतबार से। ये मतरूक हदीस के अक़साम बयान किए गए, फिर हर हदीस को सही मानो। अगर ये मानते हो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वा तो फिर हर हदीस को सही मानो, ज़ईफ मौजू मानो ही मत। जो लोग ये कहते हैं, हम कहते हैं कि हजरत ऐसा कैसे कहलवा सकते हैं, और हजरत इस्लाम फैलाने आए थे, ऐसा काम क्यों करेंगे? जब वो उनका मुरीद होने आया तो वो तो वैसे ही मुरीद ही है, जो मुसलमान होंगे मुरीद ही है। और ऐसा कैसे करवाते आप जब इस्लाम फैलाने के लिए आए आप? हाँ वही तो, फिर हुजूर ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डरो, अल्लाह के नूर से देखता है। तो मोमिन तो अल्लाह के नूर से देखता है ना। तो अल्लाह के, जब मशीनें पता लगा लेती हैं कि इसके बैग में क्या है, कोई जराइम पेशा चीज तो नहीं भरी बैग में, ये दुनियावी मशीन को अल्लाह ताला ने सिफत दे दी है साइंस की बनाई, तो अल्लाह ताला अपने खास बंदों को ऐसी पहचाने देता था उस जमाने में कि पता लगा लेते थे, लेकिन आज के जमाने में नहीं है। अब ये बात पहले जमाने के मुसलमानों को हासिल थी मोमिनों कि वो अल्लाह ताला उनके चेहरों के ऊपर, उनके ईमान में वो ताकत थी कि ईमान की रोशनी से जांच लेते थे, माप लेते थे। हज़रत ख्वाजा कईन ने ऐसा कहलवा ही नहीं सकते कि ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ो।
کیونکہ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا فراست کیا ہے؟ علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں شرف اکبر، الفراست مکاشفۃ النفس معینۃ الغیب وہی مقام من مقامات ایمان. فراست یہ ہے کہ نفوس کا مکاشفہ ہو جائے، غیب کی باتوں کا مکاشفہ یا منکشف ہو جائے. اور فرمایا یہ ایمان کے مقاموں میں سے ایک مقام کا کمال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان میں روشنی عطا فرمائی. اگر کامل ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بہت سی ایسی باتیں ظاہر فرما دے گا، پوشیدہ باتیں، لیکن اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا. علم غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کو ہی کہا جاتا ہے، عالم الغیب اللہ ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں سے واقف کرا دیتا اپنے خاص بندوں کو، مجذوبوں کو، مستوں کو. تو وہ علم غیب یہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب الشہادہ، عالم الغیب اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ غیب کی باتوں منکشف فرما دیتا ہے اپنے خاص بندوں پر. جیسے پیشن گوئی، وہ پیشن گوئی ہو جاتی ہیں آگے کے زمانے کے ساتھ میں، بہت سے کر دیتے ہیں، مست مجذوب کر دیتے ہیں. تو لیکن یہ دیکھو میں بتاتا ہوں، حضرت شیخ مجید چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا کام فرمایا کہ پورے دیش میں اسلام پھیلایا. آسان بات نہیں ہے. آج اتنی بڑی تعداد میں ہو کے ہم ڈرتے ہیں. اس زمانے میں تو مسلمان ہی نہیں تھے لیکن ڈرتے بھی نہیں تھے. اللہ کا ڈر تھا نا ان کے دل میں، اللہ کا ڈر تھا بس. نہ پانی کا انتظام، نہ لائٹ کا. باباؤں کا ڈر ہے بولے آج کے زمانے میں اللہ کا ڈر کہاں، باباؤں کا ڈر ہے. بولے کہ بابا یہ ایسا نہ ہو بابا الٹا سلٹا کا کوئی کام کر دے. ہاں یہ باباؤں کا ڈر ہے. باباؤں سے ڈر رہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں آج کے زمانے میں. فرضی مزار بہت بن رہے ہیں، جگہ جگہ فرضی مزار بن رہے ہیں. رامپور میں جو کم بیش 200 فرضی مزار ہوں گے، 200 کم. میں نے خود دیکھے کئی تو فرضی مزار. ایک تو ہمارے مرید نہیں بنا دیے تھے فرضی مزار، یہ سوار سے پاکستان میں تو 4 کلومیٹر دور جگہ ہے. وہ پٹھانوں کا مزرعہ سے پہلے، اس کا نام ہے مزرعہ، نام ہے اس کا، وہ میرکتا سے پہلے. تو وہ میرا مرید تھا، لنگڑا تھا میرا مرید تھا. میں نے خود دیکھا قبریں تھی خالی، کچھ بھی نہیں تھا. میں جاتا رہتا تھا وہاں سے. تو اس نے مزار بنا کے عروج شروع کروا دیا. تو میں نے اس دن سے بات چیت ہی بند کر دی، میں نے بات ہی نہیں کی جب سے. اور پیر تو خوب بات کرتے یار ہمارا مرید نے مزار بنایا تو ہمارا بھی نام ہوگا کہ دیکھو یہ ان کی مرید ہے، انہوں نے مزار بنوایا ہے، عروج کروا دیں. جیسے عروج میں لوگ آتے ہیں نا، اس کے ہاتھ چومیں گے تو پیر آئے گا تو اور لوگ اس کی طرف لپکیں گے. لیکن میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ میں نے بات ہی نہیں کی اس سے. جب سے بات ہی نہیں کرا، میں سلام بھی نہیں کرتا، میں تو نکل جاتا ہوں. اور یہ آج کل کے پیر کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے فرضی مزار کیوں بنایا؟ کوٹا میں امام حسین علیہ السلام کے نام پہ یادگار بنا کیوں بنائی بھائی؟ کیا وجہ تھی اس کی بنانے کی؟ پھر تو سبھی یادگار بنائے. اس سے ہی پوچھو جس نے بنائی کہ تو بنا رہا ہے تو تجھے حق ہے امام حسین علیہ السلام کی یادگار بنانے کا. تو ہمیں حق نہیں، ہم بھی بنائیں گے. چل تو اجازت دے، تو چل کے بنوا ہمارے گھر میں. جیسی تو نے بنوائی ایسی چل تو ہی بنا. چل تو منع کرے میں کیوں بناؤں؟ کہ کیوں بنائی ہے بچوں نے؟ جب یہ جائز ہے تو چلا مدد کر ہماری وہاں چل. پھر تو کوٹا میں ہر جگہ امام حسین علیہ السلام کی یادگار بن جائے. لیکن آج کوئی مولوی منع کرتا ہے کوٹا کا؟ ایک بھی امام نے نہیں کہا کہ بھائی امام مت جاؤ. امام حسین علیہ السلام جب ہندوستان میں آئے نہیں تو کوٹا میں ان کے نام سے یادگار بنا رکھی ہے. لوگ مزار منتیں مانگ رہا ہے، کوئی مرادیں مانگ رہا ہے، کوئی سلام پڑھایا. دیکھو حاجی سمی عباسی کہہ رہے ہیں سلام پڑھا جا رہا ہے. بتاؤ یہ کوٹا کے 150 مولوی کیا کر رہے ہیں؟ بریلوی لوگ. بس یہ نے دیوبندی دیکھتا، دیوبندی بریلوی اس کے اندر ہی غرق ہیں. آرہا بہت خطرناک وقت آنے والا ہے، دیکھنا. پھر یہ سب دیوبندی بریلوی تیل حدیث سب کرنا بھول جائیں گے. قوم ان کو صحیح کر دے گی. ایسا وقت آئے گا کچھ دن بعد قوم صحیح کر دے. یہ مولوی یہ کیا ہے دیوبندی بریلوی؟ دیکھ رہا ہے کیسے کیسے قانون پاس ہو رہے ہیں. ہماری جو وقف کی زمین ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ گستاخیاں ہو رہی ہیں. تو کچھ دن بعد دیکھیں کھڑے ہو کے لوگ امام کو منع کریں گے. 50 لوگ، 10 لوگ جمعے کے دن دیکھ لینا. انشاءاللہ میری پیشن گوئی ہو سکتا ہے 10-20 نوجوان اکٹھے، اے امام یہ بند کر، اور کہیں گے نماز نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے. اگر دیکھو کمیٹی والے یہ پڑھا کر نہیں پڑھے، ہو سکتا ہے اسی دن منع بھی کریں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. یہ کمیٹی والے کہیں گے یہی پڑھا کر، کہیں گے نکلو بھائی. ساتھی نکل جائیں گے، 10-20 کے نہیں پڑھیں گے، چلو نکلو. اس کا دیکھا جائے کہ 100 لوگ نکل جائیں گے. پھر ایسے ماحول بن جائے گا. جیسے وگیان نگر میں امام بولے گا یہ وہابی نے وہ لکھا، وہ کہے گا اے وگیان نگر کے جوان کھڑے ہو جائیں گے 50. کیا بھائی امام صاحب یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو ہندوستان میں کیا ماحول ہو رہی ہے؟ ہمارے خلاف قانون کیا کیا آ رہا ہے، تم یہ وہابی دیوبندی. تو پھر ایک دم 100 لوگ نکلیں گے وگیان نگر 5000 میں سے، ان کو 100 کا دیکھا دے گی 500 اور نکل جائیں گے. وہ تو قدر مت جائے گا ہندوستان. پھر تو لوگ کہیں گے صحیح بات ہے یار، یہ کیا امام صاحب کیا طریقہ تم نے
100 साल से यही तोते की तरह रट रखा है आला हजरत का वजीफा कि आला हजरत ने ये लिख दिया। तो आला हजरत ही तुम्हारा ईमान होगा क्या? सब कुछ आला हजरत ही है। जो कुछ बात कर रहे हो तुम आला हजरत के हवाले से कर रहे हो कि आला हजरत ने ये फरमाया, आला हजरत ने वो फरमाया, आला हजरत ने इसे जायज लिखा, आला हजरत ने इसे नाजायज लिखा। अल्लाह रसूल का हवाले ही नहीं, अल्लाह रसूल की बात ही नहीं कर रहे। कुरान हदीस को एक साइड करके आला हजरत ने ये लिखा है तो आला हजरत ने वो लिखा है। आला हजरत ने लिखा कब्र में शैतान आता है, बेकार है तुम मानो। अरे कुरान में कहाँ लिखा कब्र में शैतान आता है? हदीस में किस हदीस में लिखा है कब्र में शैतान आता है? अरे कहीं भी किसी भी हदीस में नहीं कि कब्र में शैतान आता है, किसी एक भी सही हदीस में नहीं। ये तो मौजू रिवायतों में है, मौजू रिवायतें जो मनगढ़ंत मानी जाती हैं उनमें उसको दलील बनाया उन्होंने। नहीं सही रिवायत में होता है। तुम खुद बताओ, चारों इमाम नहीं मानते इस बात को कि हाँ कब्र में शैतान आता है। चारों इमामों के मानने वालों का ये अकीदा होता है, बल्कि आज बरेलवियों का भी अकीदा नहीं है, काफी तादाद में आलिमों तक का। लेकिन जब उन्हें बताओ कि आला हजरत ने लिखा है तो अरे उन्होंने लिखा तो फिर तो आता है। अरे यही आपके कोटा में एक इमाम है लाड़पुरा की मस्जिद में, जो पहले कहते थे नहीं कुरान हदीस से साबित नहीं कब्र में शैतान आता है, बल्कि मरने तक जिंदगी तक का मामला है, यही लाड़पुरा कोटा में। वो जब मालूम हुआ कि आला हजरत ने लिखा तो एकदम पलटी खा गया, कुरान हदीस को एक साइड करके कहने लगा कि मानने लगा नहीं तो आता। तो इनका ईमान ही कहाँ है? तो जबकि कुरान में अल्लाह फरमाता फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम अंदर किसी मामले में तनाज़ा हो जाए तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटो। मतलब है कि कुरान में और हदीस से पाक में उस मसले का हल तलाश करो। ये अल्लाह ने फरमाया। अगर किसी मसले में उलझ जाओ तो पहले देखो कुरान में इसका हल, इसका क्या जवाब है, और हदीस शरीफ में। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया। तो ये क्या देख रहे हैं कि आला हजरत ने क्या लिखा मुझे, ये मौलवी आजकल। तो वो लाड़पुरे वाला मौलवी एकदम बदल गया, कहना नहीं साहब वो तो आता है। वो तो फिर हवाले भेजने लगा, ये देखो साहब हवाला आता है। मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार कैसे इनके पीछे क्या नमाज होगी। जो अभी कुरान हदीस के हवाले से बात कर रहा था, यही लाड़पुरा का इमाम मुरादाबाद साइड का है, वो बड़ा स्मार्ट बनते हैं अपने आप को, चैनल वगैरह भी चलाते हैं। एक तरफ कुरान हदीस के हवाले से कह रहा है कि नहीं आता, और बाद में जब हालत की बात मालूम हो गई तो कह रहा है कि नहीं आता है, अल्लाह रसूल को मानने लगा। फिर अल्लाह रसूल को छोड़ के हालत को मानने लगा, यानी अल्लाह रसूल का नाम ही नहीं ले रहा फिर भगवान का। तो यही तो मतलब हुआ ना, अल्लाह रसूल को छोड़ के फिर हालत को मानने लगा। बताएगा ना उसे तो क़यामत के दिन। बस ये है कि बस अल्लाह ताला करम फरमाए। हालात ये है ना, अब अपना ईमान यही है कि अपना ईमान की हिफाजत करें और दूसरों की भी फिक्र करें। यही नहीं कि अपनी, पर जितना हो सके नमाजी बनाओ और हलाल रोजी का पाबंद। हलाल रोजी जब खाएगा तो सही बात दिमाग में होती है। और इस बार शेर पंजाब जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। शेर पंजाब की तकरीर सुना हजरत मौलाना हारून उस्मान साहब की, वो प्योर इस्लाम की तबलीग कर रहा है। और थोड़ी बहुत कमी तो सब में होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कमी पे ध्यान रखो, वो ज्यादातर बातें सही बताते हैं। हम तो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। हाँ एक आध दो बातें कुछ ऐसी हो जाए तो उसे सोचना चाहिए, थोड़ी बहुत कमी तो सब में होती है, दिक्कत बात नहीं है, लेकिन शिर्क नहीं होना चाहिए ना। तो वो शिर्क थोड़ी करते हैं ख्वाजा उस्मान, वो मौलाना उस्मान हारून। शिर्क नहीं होना चाहिए ना। अरे वो उस्मान साहब की तकरीर में शिर्क में कुछ नहीं होता, बहुत बढ़िया तकरीर। तो छोटी मोटी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन शिर्क की माफी नहीं है। नहीं शिर्क नहीं, पानी जाना ठंडा, शिर्क की नहीं माफी तो कुरान में लाने फरमाया शिर्क जबरदस्त जुल्म है। लेकिन शिर्क के बारे में हुजूर ने फरमाया है मेरी उम्मत बड़ा शिर्क नहीं करेगी, और अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया छोटा शिर्क मेरी उम्मत में छुपा हुआ है, यानी छोटा शिर्क उम्मत से होगा। तो छोटे शिर्क से बंदा काफिर मुशरिक नहीं होगा, लेकिन ईमान खराब हो जाता है, वो तकवे के खिलाफ है, ईमान में कमी आती है। हुजूर ने फरमाया छोटे शिर्क से भी बचो। छोटा शिर्क क्या है? हुजूर ने ये भी फरमाया कि जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया। तो नमाज पढ़ने से दिखावे के लिए पढ़ रहा हो लेकिन काफिर मुशरिक नहीं होगा, लेकिन हुजूर ने फरमाया उसने शिर्क किया, वो छोटे शिर्क में दाखिल है। लेकिन छोटा शिर्क भी खतरनाक है, हुजूर ने फरमाया इससे भी बचो, छोटा शिर्क भी खतरनाक, लेकिन उससे काफिर नहीं होता। छोटे शिर्क से इस्लाम तो खारिज नहीं होता, लेकिन बचने के लिए हुजूर ने फरमाया बचो। जैसे आपकी कोई लड़की का पैगाम आया नवासी का, 5 बीघा जमीन थी कि आप कोई लेके आया कि क्या करते हैं कि साहब नमाज 5 टाइम पढ़ते हैं, 10 बीघा जमीन है और 2 भाई हैं, 2 भाई बहन है कि 3 है। नमाज साहब 5 टाइम पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, हलाल खाते हैं। अरे आप बाद में देखेंगे, अभी कह देना अभी थोड़ा लड़की की पढ़ रही है तो इतने में लिया अब्दुल वही साहब रिश्ता ऐसे के इंजीनियर है, गवर्नमेंटेड इंजीनियर। ये क्या करता है लड़का? साहब इंजीनियर है और कहाँ है कि वो इंग्लैंड में है,
मगर यार एक खराबी है हाजी शमीम साहब कि वो नमाज से जुमा पढ़ता है बस, और रोजे भी नहीं रखता रमजान के। अरे अब्दुल भाई साहब चले गए यहाँ चले गए, वो तो अल्लाह हिदायत देगा। तो यही तो छोटा शिर्क है, यही शिर्क है कि एक इंजीनियर को कबूल कर लिया बेनमाजी शैतान को, वो एक नमाजी को भगा दिया जो 5 बीघा जमीन की वजह से 10 बीघा जमीन में हमारी लड़की क्या करे, यही शिर्क है। ये बड़ा नहीं है, एक छोटा शिर्क है कि शिर्क इसने ये समझा कि मेरी बेटी क्या करेगी 10 बीघा में, 2 भाई हैं, वो देख लिया इंजीनियर इंग्लैंड में 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हुआ, मेरी बेटी मदद करेगी। वो बता भी दिया कि एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, जुमा पढ़ता है रमजान के। अरे सब चलेगा हाजी अब्दुल भाई साहब लिया आपको, और अब्दुल भाई साहब आप खाने ही खाने में या 5 दिन लगातार खाना, ऐसा रिश्ता आपने बताया, इंग्लैंड वाला बताया। तो छोटा शिर्क हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में छुपा है। इसको देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मौदूदी सब करते हैं। कोई अगर अहले हदीस हो के हम नहीं करते मेरे सामने लाओ, क्यों तुम्हारे बाप अहले हदीस अगर सब नहीं करेंगे कुछ करेंगे, ये नहीं कि सभी करेंगे, कुछ तो सब में से करेंगे, देवबंदियों में, बरेलवियों में, सब में से करेंगे। जब हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में छुपा है तो इसका मतलब तुम उम्मत से बाहर हो। अगर कहते नहीं हम नहीं करते फिर तो उम्मत में ही नहीं। अगर अहले हदीस कहते हम कोई नहीं करते फिर तो उम्मत में ही नहीं। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में छुपा है, या तो तुम इनकार करो उम्मत में ही नहीं है। देवबंदी कहते हम नहीं करे तो तुम उम्मत में ही नहीं हो, फिर बरेलवी के हम नहीं करते तुम भी उम्मत में नहीं हो। फिर मानना पड़ेगा कि उम्मत में हो। हाँ उम्मत के सब अफराद नहीं करेंगे तो बहुत से करेंगे, जो बचने वाले होंगे उन्हें अल्लाह बचाए। नहीं जो बचने वाले सब नहीं करेंगे, जो बचने वाले होंगे अल्लाह उनको बचाएगा। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में छोटा शिर्क छुपा है। ये नहीं फरमाया मेरी पूरी उम्मत शिर्क करेगी, ये फरमाया मेरी उम्मत में छुपा है। मतलब उम्मत के बहुत से अफराद ऐसे काम शिर्किया करेंगे, छोटा शिर्क होगा। लेकिन बड़े शिर्क के बारे में फरमाया मेरी उम्मत बड़ा शिर्क नहीं करेगी। बड़े शिर्क से फिर इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसे कुरान याद नहीं होता है। जिसने बड़ा शिर्क लिया वो कुरान का हाफिज नहीं होगा क़यामत तक। मुश्रिक कुरान का हाफिज नहीं हो सकता। कुरान में इन्नमल मुश्रिकूना नजस, बेशक मुश्रिक नजिस से फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिन हाज़ा, मस्जिद हराम के करीब ना है इस साल के बाद। तो मुश्रिक के सीने में कुरान महफूज हो गए नहीं। तो देवबंदी बरेलवी दोनों को कुरान याद होता है, इसका मतलब छोटे शिर्क तो हो रहे हैं, बड़ा नहीं हो रहा। बड़ा होता तो कुरान के हाफिज होते ही नहीं कोई, ना देवबंदी होता ना बरेलवी होता मैं लाना। फिर मुश्रिक को लाओ हाफिज, ईसाइयों को लाओ, यहूदियों को लाओ, अगर कोई कितना हो सकता है तो लाओ। यहूदियों को लाओ, ईसाइयों को लाओ, कादियानी को लाओ। कादियानी भी नहीं हो सकता। हेलो हाँ हाजी, हाँ बोलो। ये जो खाजा है, ये जो अजमेर में जो दरगाह के ऊपर जो ये हामिद है, हाँ ये जो अल्फाज बोलता है ये मुसलमान है या इस्लाम में है या इस्लाम से बाहर है? कौन कौन? जो ये उसका जो मुरीद है ना, किसका? अजमेर में जो उसका जो मुरीद है ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के, उनके मुरीद का है सब, वो तो पुराने थे 800 साल के। वैसे उनके हाथ में है जो, अरे मुजाविर कहो, उनके जो मुजाविर है वो मुसलमान है या? अरे उनको उनके हाल से छोड़ो, अपन को तो कभी जाओ तो बस फातिहा पढ़ो रह जाओ, बस दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो रह जाओ बस। उनको उनके हाल पे छोड़ो, किस किस को देखेंगे, ठीक है? अरे वो तो डायरेक्ट उनसे ही दुआ मांगते हैं, वो तो उनको उनके जान दो, तो नमाज तक नहीं पढ़े उनकी क्या दुआ कबूल होगी? नमाज तो पढ़ते नहीं है वो, तो जाने क्या क्या कहते हैं, वो करवाते हैं वो तो गेरों के सामने दुआ अल्लाह ही से करनी चाहिए, मदद सिर्फ अल्लाह ही से मांगनी चाहिए बस। गेरुल्ला से मांग रहे मालूम है आपको? नहीं, नेक अमाल का वसीला वो जायज है, वो कुरान में जो है वब्तगूल वसीला, वो नेक अमाल मुराद है, ईमान और नेक अमाल। ईमान नेक अमाल, अपने खुद के नेक अमाल का वसीला दे सकते हैं, दुआ कर सकते हैं अपने माँ बाप के, ठीक है? इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, अगर हम जा रहे हैं, ठीक है? फिर बात करेंगे इंशाल्लाह, जरा जाना है। बेटा देगा, बेटी देंगे, ये जायज है? बेटा बेटी देने वाला कौन है? बेटा बेटी कौन देने वाला है? तो सब अल्लाह ही देता है, कौन कह रहा के तो वो बोलते हैं ना ये अल्फाज। अरे तो उन्हें जाने दो, उनको हल पे छोड़ो। जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ पकड़ रो रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, दर्रा नहीं हिलता, सब अल्लाह ही मदद फरमाता है। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, अगर हम गाड़ी पे बैठ रहे हैं, जरा ठीक है? ठीक है, कोई बात। सलाम।